السلام علیکم، خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں سرخیوں سے۔ 1 روپے کلو کا چاول غیر معیاری، کھانے کے قابل نہیں، اکبر اویسی کی تنقید، رچہ بنڈا پروگرام میں شرکت۔ اقتدار پر 1 سال کا مکمل کر لینا ہی کرن کمار ریڈی کی واحد کامیابی، رچہ بنڈا نمائشی پروگرام، تلگو دیشم کی تنقید۔ مسلم نوجوانوں پر حملے میں ملوث گرفتار کردہ ہندو واہنی کے 6 کارکن SIT کی تحویل میں۔ بدعنوانیوں کے واقعات پر وزراء سے زیادہ جواب دے سرکاری عہدیدار، کانگریس کے سینئر ارکان کونسل کی منطق۔ اور ریاستی انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ کی حیثیت سے نثار احمد کاکڑو کے انتخاب پر BJP چراغپا، کانگریس اور تلگو دیشم پر سازش رچنے کا الزام۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبریں تفصیل سے۔ مجلسی قائد مقننہ اور رکن اسمبلی چندران گٹا اکبر الدین اویسی نے 1 روپے کلو چاول اسکیم کے تحت فراہم کیے جانے والے چاول کو غیر معیاری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ چاول کھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اپنے حلقہ انتخاب کے بلدی وارڈ ریاست نگر میں رچہ بنڈا پروگرام کا افتتاح انجام دیتے ہوئے اکبر اویسی نے مطالبہ کیا کہ سفید راشن کارڈ پر 4 لیٹر کیروسین فراہم کیا جائے۔ انہوں نے گزشتہ رچہ بنڈا پروگرام کے تحت داخل کی گئی درخواستوں کی عدم یکسوئی پر حیرت کا اظہار کیا۔ قائد مجلس نے کہا کہ مکانات کی فراہمی سے متعلق اسکیم پر مؤثر عمل آوری کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اس پروگرام میں حلقہ چندران گٹا کے تمام کارپوریٹرز موجود تھے۔ ایک سوال پر قائد مجلس نے کہا کہ ان کی جماعت حیدرآباد کو ایک اچھا میئر دے گی، تاہم اس پر قطعی فیصلہ پارٹی اور پارٹی سربراہ کریں گے۔ لاسٹ رچہ بنڈا جو پروگرام ہوا تھا، اٹس بین ایگزیکٹلی 1 ایئر، اور 1 سال میں راشن کارڈز کے لیے 16,000 اپلیکینٹس اپلائی کرے تھے، لیکن اس میں سے صرف 6,242 کو میرے کانسٹیٹنسی میں راشن کارڈز دیے گئے، باقی 10,000 لوگوں کو مختلف ریزنز کی وجہ سے ڈینائی کر دیا گیا۔ تو اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب 4 لیٹر کیروسین دیا جا رہا ہے۔ اگر 4 لیٹر کیروسین 1 مہینے میں دیا جاتا ہے تو اگر آپ 4 لیٹر کیروسین کو 30 ڈیز میں اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے تو آلموسٹ 135 ml آتا ہے۔ تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کھانا پکانے کو گیس کا تیل دے رہے ہیں یا چراغ جلانے کے لیے؟ ایک چھوٹا سا چراغ بھی جو ہے اگر روز جلائیں گے تو 130 ml میں وہ بھی نہیں جلے گا۔ تو یہ ایک، اور ان کے پاس گیس سلنڈر نہیں ہے، گیس سلنڈر ایکسپینسو ہو گیا ہے، تو 4 لیٹر کیروسین میں کیسا 1 مہینہ ایک آدمی گزارے گا؟ اور 1 روپیہ کلو چاول کا اسکیم آیا ہے، میں میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ شاپس پہ جا کے دیکھیں کہ کوالٹی کیسا ہے 1 روپیہ کلو چاول کا۔ اتنا خراب کوالٹی ہے کہ پاؤڈر تو بھی اچھا ہوگا یا تو پتھر تو بھی اس سے اچھا ہے۔ تو کوالٹی امپروو کریے، آپ 1 روپے کے بجائے 2 روپے میں دیو، لیکن اچھا دیو۔ 2 روپے کے بجائے 5 روپے میں دیو، اچھا دیو، لیکن آپ ایسا دے رہے ہیں کہ جو کھا ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے چیز ہے، پینشنز 10,000 اپلائی کرے، صرف 300 دے رہے ہیں، اس میں آپ 1 سال میں آپ راشن کارڈ نہیں دیے، 1 سال کے بعد ٹوکنز دے رہے ہیں، اور اب آپ بول رہے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر راشن کارڈ دے دیں گے۔ اور پھر یہ لاسٹ رچہ بنڈا سے پہلے بھی کئی ایسے راشن کارڈز دے دیے تھے، لیکن ان کو راشن اور راشن شاپ الاٹ نہیں کرے تھے۔ آج تک بھی وہ راشن کے کارڈز ہیں، صرف ایک آئیڈینٹی پروف بنے ہوئے ہیں، اور اس پہ راشن نہیں ملتا۔ صاحب، ہاؤسنگ اسکیم اس واسطے ہی ہے کہ لینڈ از اویلیبل ایز فار ایز مائی کانسٹیٹنسی از کنسرن، لیکن لیٹیگیشن کریٹ کیا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ یہ اس لینڈز کو لیٹیگیشن فری امیجیٹلی کرنا اور ہاؤسنگ کو لینا ہے، لیکن it is the totally a failure of the authorities who are responsible for the implementation of housing scheme بولوں گا میں۔
वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने खम्मम में रचा बंटा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत गरीबों के मसाइल के हल के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि रोजगार की फराहमी के लिए राजीव युवा करनालू प्रोग्राम के तहत 3 साल के प्रोग्राम के दौरान 15 लाख मुलाजमतें फराहम की जाएंगी और नए रेशन कार्ड्स की इजराई को भी यकीनी बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। డిసెంబర్ లోపల 1,16,000 ఉద్యోగాల్ని ఇప్పటికే భర్తీ చేస్తున్నాం. నోటిఫై చేసి మొట్టమొదట ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలన్నీ కూడా భర్తీ చేయమని ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది. ఇప్పటికే మొదలు పెట్టాం. ఎస్ఐలు అయిపోయినాయి, గ్రూప్ 1 అయింది, గ్రూప్ 2 అయింది, మళ్ళా నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నాం, మళ్ళా ఎస్ఐలకు ఇచ్చాం, కానిస్టేబుల్ 20,000 28,000కి ఇచ్చాం, టీచర్లకు ఇస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో 10% పైన అంటే 1,16,000 అంటే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో 10% ఈ సంవత్సరమే మనం భర్తీ చేయడం జరుగుతా ఉంది. ఇది ఎప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో 10% ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసిన ఒక్క సంవత్సరంలో ఎప్పుడు జరగలేదు. किरण कुमार रेड्डी जुमे को महबूब नगर और शादनगर में रचा बंटा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम से पहले चीफ मिनिस्टर 5 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले तामीरी कामों का संग बुनियाद रखेंगे और 34 लाख की लागत से तकमील पा चुके 3 कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। बाद में चीफ मिनिस्टर शादनगर में रचा बंटा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने वजीर आला की हैसियत से 1 साल मुकम्मल कर लिया है। अपने 1 साला दौरे इख्तिदार में किरण कुमार रेड्डी ने जहां काफ़ी मुश्किलात का सामना किया, वहीं उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के ऐलान के जरिए अपनी हुकूमत की कारकर्दगी दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन पानी की शरहों में इजाफा, बरखी कटौती, अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा और किसानों के मसाइल से निपटने में नाकामी उनकी कारकर्दगी के मनफी पहलू रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। 24 नवंबर 2010 किरण कुमार रेड्डी को रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाने का कांग्रेस आलाकमान ने ऐलान किया था। ये वो वक्त था जब रियासत में सियासी गैर यकीनी का माहौल था और फिर 25 नवंबर को किरण कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने के बाद अपनी नई काबीना की तश्कील अमल में लाई थी। लेकिन काबीना की तश्कील के बाद कलमदानों को लेकर नाराजगियां शुरू हो गई और ये महसूस होने लगा था कि किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। लेकिन अहम मसाइल व मसाइब के बावजूद किरण कुमार रेड्डी ने 1 साल मुकम्मल कर लिया है और अपने 1 साला दौरे इख्तिदार में उन्हें कई नशीब व फराज से भी गुजरना पड़ा। इस 1 साल के दौरान अलहदा तेलंगाना तहरीक की शिद्दत के उतार चढ़ाव, 42 दिन की आम हड़ताल, अदम ताउन तहरीक के बावजूद चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने हालात से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने 1 साला दौरे इख्तिदार में किरण कुमार रेड्डी ने नए तालीमी साल के आगाज के साथ ही 15 रोज़ा खुसूसी तालीमी प्रोग्राम का ऐलान किया और रियासत में हक़ तालीम एक्ट को आम करने के लिए काफ़ी संजीदगी का भी मुजाहरा किया। अगर किरण कुमार रेड्डी के बहैसियत चीफ मिनिस्टर 1 साला कारकर्दगी का कोई नुमाया ऐलान रहा है तो वो 1 रुपया किलो चावल स्कीम है। भले ही इस सिलसिले में हुकूमत के अंदर और बाहर के अफराद भी इसे तनकीदों का निशाना बना रहे हैं, लेकिन इस स्कीम को लेकर उन्होंने अपनी हुकूमत में एक नई जान डाली है। उधर राजीव युवा करनालू प्रोग्राम के जरिए 3 साल के दौरान 15 लाख मुलाजिमतों का निशाना भी रखा गया है। किरण कुमार रेड्डी ने इस 1 साल के दौरान पार्टी में जारी गैर यकीनी सूरत हाल को भी दूर करने की कोशिश की है और पार्टी के लिए खतरा समझे जाने वाले जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असम्बली को दोबारा पार्टी में लाने में भी कामयाबी हासिल की है। लेकिन किरण कुमार रेड्डी के दौरे हुकूमत का मनफी पहलू यह है कि आबरसानी की शरहों में इजाफा कर दिया गया, जिस पर 1 दिसंबर से अमलावरी होगी। कहने वाले ये कहते हैं कि चावल की कीमत में कमी की गई 1 रुपए की, उस कमी को पानी में 40 था 50 रुपए बढ़ा दिया गया। इसके अलावा आम हड़ताल के खत्म होने के बावजूद भी अभी भी बरखी कटौती का सिलसिला जारी है, जिससे अवाम में बरहमी पाई जाती है। अशिया ज़रूरियात की कीमतें भी वक्फे से बढ़ती जा रही हैं। मजमूई तौर पर किरण कुमार रेड्डी ने अपनी कारकर्दगी से पार्टी आलाकमान को तो मुतमईन किया है और आलाकमान का हाथ सर पर होने और मुकम्मल सरपरस्ती की वजह से वो नज़्म नसक को चलाने में भी कामयाब रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में किरण कुमार रेड्डी को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है,
क्योंकि अवामी मसाइल उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं। क्योंकि सिर्फ ₹1 किलो चावल स्कीम या रक्षा बंडा या फिर राजीव युवा किरणालू के सिलसिले में ऐलानात करने से हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। हुकूमत को दिन ब दिन ज़रूरी अशिया से लेकर पानी और बरक़ी की शरहों में इजाफे को भी काबू में रखना होगा, क्योंकि ये अवाम से जुड़ा हुआ मसला है। चीफ मिनिस्टर की हैसियत से 1 साल मुकम्मल कर लेना ही किरण कुमार रेड्डी की वाहिद कामयाबी है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर टी श्रीनिवास यादव ने यह रिमार्क किया। उन्होंने किरण कुमार रेड्डी के 1 साला दौरे इख्तिदार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिर्फ रक्षा बंडा प्रोग्राम के नाम पर चीफ मिनिस्टर अपनी कारकर्दगी का ढोल बजा रहे हैं। उन्होंने रक्षा बंडा के दूसरे मरहले के दौरान जुमला दरखास्तों की वसूली और उसकी यकसुई की वजाहत करने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर की कमगोई, सब्र तहम्मुल और मजबूत इरादों ने कांग्रेस की कश्ती को भंवर से निकालने में कामयाबी हासिल की है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली आनम विवेकानंद रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जिस वक्त किरण कुमार रेड्डी ने ओहदा संभाला था उस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल थी, लेकिन किरण कुमार रेड्डी ने अपनी काबिलियत और खामोश मिजाजी से काम लेते हुए हालात पर काबू पा लिया। जगन के हामी अरकान असेंबली से मुताल्लिक पूछे गए एक सवाल पर आनम विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की मछलियां कांग्रेस के समंदर में ही सांस ले सकती हैं, बाहर सांस लेने में उन्हें तकलीफ पेश आ सकती है। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि जगन की वापसी मुमकिन नहीं है और अगर वो वापस आना भी चाहें तो उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो चुके हैं और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। అంతటితోనే కాకుండా సునామీ, ఒక పెద్ద తుఫాను, హరికేన్ లాంటి పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో నడిపేటటువంటి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని, ఈ ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వాన్ని విజయ తీరాల వైపు ఆ సరంగుతో నడుపుతున్నటువంటి విధానం చూసినప్పుడు ఇది ప్రజా ప్రభుత్వం। जगनमोहन रेड्डी के हामी रुकन असेंबली शीशा रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर की शफाफ हुक्मरानी के पेश नज़र उनके हल्के की तरक्की के लिए वो कांग्रेस में रहकर ही खिदमत अंजाम देना पसंद करेंगे। मीडिया से बात करते हुए शीशा रेड्डी ने कहा कि उनकी सियासी जिंदगी सिर्फ 5 साल की है और इसका मकसद अवाम की खिदमत है, लिहाजा उन्होंने किरण कुमार रेड्डी के अंदाज़े कारकर्दगी और YSR की स्कीमों पर जारी मौसर अमलावरी को देखते हुए कांग्रेस में रहने का फैसला किया है। मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए शीशा रेड्डी ने कहा कि वो अब भी FIR से YSR का नाम हज़फ करने के हक में हैं। उन्होंने जगन के साथ ताल्लुकात पर कहा कि ये शख्सी ताल्लुकात हैं जो जारी रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस में वापसी के असबाब पर रोशनी डालते हुए कहा कि हल्के के अवाम की ख्वाहिश को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस में लौटने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में रियासत में चौंका देने वाले सियासी वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। जगनमोहन रेड्डी के घर पर हामी अरकान असेंबली के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कोंडा सुरेखा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों कैंप्स में अरकान असेंबली अपने अपने मौक़िफ़ को बदल रहे हैं और इस बात के कवी इम्कानात पाए जाते हैं कि मौक़िफ़ बदलने वाले अरकान असेंबली अपने फैसलों पर नज़र सानी भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जगन के हामी अरकान असेंबली के इजलास में 1 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली इजलास की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने पर जगन के हामी अरकान के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर कोंडा सुरेखा ने कहा कि अरकान जो भी फैसला लेंगे वो उसकी पाबंदी करेंगे। वाज़ेह है कि YSR पार्टी के इजलास में सिर्फ 20 हामी अरकान असेंबली ने शिरकत की, जबकि 8 अरकान असेंबली गैर हाजिर रहे। कांग्रेस की जानिब से जगन के हामी अरकान को पार्टी में वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। इजलास में 8 अरकान की अदम शिरकत को जगन कैंप से अलायदगी समझा जा रहा है। टेलीविजन ने इल्जाम लगाया है कि YSR पार्टी की सरपरस्त विजय लक्ष्मी की जानिब से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जो दरखास्त दाखिल की गई उसमें कई गलतियां पाई जाती हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम के रुकन असेंबली P केशव ने कहा कि विजय लक्ष्मी अपनी दरखास्त के जरिए अदालत को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं और जगन के खिलाफ जारी CBI तहकीकात से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये दरखास्त दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू काकीनाडा पोर्ट के मामले में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि काकीनाडा पोर्ट के मामले में जो रियायतें दी गई थीं उसे YSR गवर्नमेंट ने मंजूर की थी।
انہوں نے اس معاملے میں KVP رامچندر راؤ کے خلاف کارروائی نہ کیے جانے پر جگن موہن ریڈی سے وضاحت کرنے کا مطالبہ کیا۔ پرجا راجیم پارٹی سے کانگریس میں شامل ہوئے 3 یا 4 ارکان اسمبلی کی ریاستی کابینہ میں شمولیت یقینی دکھائی دے رہی ہے۔ چرنجیوی کے دلی دورے کے دوران کانگریس اعلیٰ کمان کی جانب سے دیے گئے اشارے کے بعد چرنجیوی نے اپنے حامیوں کو کابینہ میں جگہ دلانے کی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے کے تحت چرنجیوی نے جمعرات کو صدر PCC بی ستیہ نارائنا سے ملاقات کی اور چند ارکان اسمبلی کے ناموں کی فہرست بھی انہیں حوالے کی۔ پتہ چلا ہے کہ نامزد عہدوں پر بھی چرنجیوی اپنے حامیوں کو عہدے دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزراء سے زیادہ جواب دہ عہدیدار ہوتے ہیں، کانگریسی قائدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سینئر کانگریسی ارکان کونسل پی وینکٹ راؤ اور آموس نے کہا کہ انتظامیہ کو مؤثر کارکرد اور بدعنوانیوں سے پاک بنانے کے لیے انتظامی اصلاحات کمیٹی کے قیام کی ضرورت ہے۔ ان قائدین کا کہنا تھا کہ وزراء صرف 5 سال کے لیے عہدے پر ہوتے ہیں، جبکہ عہدیداروں کو اپنے فرائض سالوں تک انجام دینے پڑتے ہیں اور وہ وزراء کو کسی بھی طرح کے نامناسب فیصلے سے روک بھی سکتے ہیں۔ البتہ اگر عہدیداروں کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ لیا جائے تو پھر عہدیداروں کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ لہٰذا کسی بھی بدعنوانی کے معاملے میں کسی فرد واحد کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ آموس اور پی وینکٹ راؤ نے CBI کو مشورہ دیا کہ وہ ان باتوں کو ذہن نشین رکھتے ہوئے تحقیقاتی کام انجام دے۔ دونوں قائدین نے ماضی کے کئی ایسے معاملات کی نشاندہی کی جس میں اس وقت کے عہدیداروں نے کئی بار متعلقہ وزراء کو بعض فیصلوں سے باز رکھا تھا۔ مسلم نوجوانوں پر حملوں کے واقعات میں ملوث ہندو واہنی کے 6 کارکنوں کو عدالت نے 4 دن کی پولیس کے شعبے SIT یعنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کے حوالے تحویل میں دے دیا ہے۔ 8 اور 9 نومبر کو شہر کے 5 مختلف مقامات پر مسلم نوجوانوں پر حملے کیے گئے تھے۔ ان حملوں کے سلسلے میں پولیس نے ہندو واہنی کے 6 کارکنوں سدانند، شکتی ونود، انی کرشنا، پی بھارگو، سوریہ ونشی، سنتوش اور پانڈوگا کلیان کو گرفتار کیا تھا۔ ہندو واہنی کے ان کارکنوں نے بقرعید کے بعد مسلم نوجوانوں پر حملے کیے تھے۔ ہندو واہنی کے ان کارکنوں کی گرفتاری کے بعد یہ انکشاف ہوا تھا کہ ان 6 کارکنوں نے 8 نومبر کو باغلنگم پلی پارک میں جمع ہو کر مسلمانوں پر حملے کا فیصلہ کیا اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ان تمام نے اسی رات مہلک ہتھیاروں سے عمر فاروق، ارشاد حسین، سید معراج، سید مشتاق، اعظم پاشا، ادریس انصاری اور عبدالعزیز نامی نوجوانوں پر حملے کیے تھے۔ گزشتہ ہفتے ہندو واہنی کے 6 کارکنوں پر 153A سیکشن کا اضافہ کرتے ہوئے ان واقعات کی تحقیقات SIT کے حوالے کر دی گئی تھی۔ امکان ہے کہ SIT کی جانب سے ان ملزمین کی حاصل کی گئی 4 دن کی تحویل میں مزید حقائق سامنے آ سکتے ہیں۔ BJP نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کمیشن کے صدر نشین کے عہدے کے لیے نثار احمد کاکڑ کا انتخاب کانگریس اور تیلگو دیشم کی رچی ہوئی ایک سازش ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے جنرل سیکرٹری رام چندر راؤ نے کہا کہ دیگر ریاست سے تعلق رکھنے والے شخص کو ریاستی انسانی حقوق کا صدر نشین نہیں بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ زبان اور مقامی حالات سے عدم واقفیت کی وجہ سے عوام کو صحیح معنوں میں انصاف کے حصول میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے بلدی حلقے نورگاں بازار میں رچا بنڈا پروگرام میں حصہ لیا۔ متعلقہ رکن بلدیہ ریاض الحسن آفندی اور نوڈل آفیسر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ عوام میں منظور شدہ راشن کارڈز اور ماہانہ وظائف کے دستاویزات کی تقسیم عمل میں آئی اور نئی درخواستیں بھی دی گئیں۔ بلدی حلقے اکبر باغ میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے رچا بنڈا پروگرام میں حصہ لیا۔ رکن بلدیہ منہاج الدین اور حلقے کے نوڈل آفیسر بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر رچا بنڈا پروگرام کے پہلے مرحلے کے دوران داخل کی گئی درخواستوں پر منظور شدہ راشن کارڈز اور وظیفے کے دستاویزات تقسیم کیے گئے اور حکومت کی مختلف اسکیموں کی درخواستیں بھی تقسیم کی گئیں۔ احمد بلالہ نے بلدی حلقے سعید آباد میں بھی رچا بنڈا پروگرام میں حصہ لیا۔ رکن بلدیہ سرینواس ریڈی اور نوڈل آفیسر کے ہمراہ انہوں نے عوام میں ریشن کارڈز تقسیم کیے۔
मुस्तैक पुरा में भी रच्चा बंडा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मुताल्लिका रुकन असम्बली अफसर खान ने इसमें शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर ज़ईफ अफराद में वजीफे की रकम तकसीम करने के अलावा आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम, फैमिली बेनिफिट स्कीम और सफ़ेद रेशन कार्ड्स के नए दरख्वास्त गुजारों में फॉर्म्स तकसीम किए। इसके अलावा उन्होंने 20 बेवा खवातीन में फैमिली बेनिफिट स्कीम की रकम 5,000 रुपये तकसीम की। इस मौके पर मुताल्लिका कॉर्पोरेटर ए अरुणा और मुताल्लिका मंडल रेवेन्यू ऑफिसर्स भी मौजूद थे। मल्लेपल्ली डिवीजन के कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस पाशा ने घर घर जाकर फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई। उन्होंने मकामी अफराद को फौरी अपने नामों का फहरिस्त में इंदराज करवाने का मशवरा दिया। उन्होंने हबीबनगर में मजलिस की नुमाइंदगी पर महकमे सेहत के डॉक्टर्स की जानिब से किए जा रहे खून के मुआयनों का भी जायजा लिया। रियासती हुकूमत ने जिले चित्तूर में 2 शादी खानों की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए बताया गया है कि जिले चित्तूर के गोरमगुंडा और कानकनी मंडल में शादी खानों की तामीर अमल में लाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को तामीरी काम जल्द शुरू करने की हिदायत दी है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने बलदी हल्के दूध बौली में कदीम खबरस्तान, तकिया बुढ़न शाह की तामीर नौ और बाउंड्री वॉल की तामीर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुताल्लिका रुकन बल्दिया एम गफ्फार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने चिटकनीपुरा का भी दौरा किया और मकामी मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन के ताउन से कायम किए गए आरोग्यश्री हेल्थ कैंप का भी इफ्तिताह किया। रुकन असम्बली अफसर खान ने अपने हल्के के इलाके तालागड्डा में बरकी ट्रांसफार्मर और यूसुफ नगर में पीने के पानी की पाइपलाइन का इफ्तिताह किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तालागड्डा में बरकी मसाइल मुतवातिर पेश आ रहे थे, जिसकी वजह से कदीम ट्रांसफार्मर को तब्दील करके 150 kVA का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है ताकि बरकी लोड्स में इस्तेकाम पैदा हो सके। जबकि यूसुफ नगर के इलाके में उन्होंने पीने के पानी की पाइपलाइन का इफ्तिताह किया। इस लाइन की वजह से वहां के पीने के पानी के मसाइल की यकसुई हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मजलिस अवाम की सहूलत और मफाद को पेश नजर रखते हुए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स तकमील करवा चुकी है, जबकि ऐसे कई नए प्रोजेक्ट्स जेर गौर हैं। अजीम तर हैदराबाद के लिए हुकूमत ने मजीद 3,500 ऑटोस के रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे दी है। ये रजिस्ट्रेशन जनवरी के महीने तक किए जाएंगे। SC और ST तबके के लिए 500 रजिस्ट्रेशंस का कोटा रखा गया है। आम जुमरे के तहत 3,000 रजिस्ट्रेशंस किए जाएंगे, जबकि रजिस्ट्रेशंस की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2012 मुकर्रर की गई है। वाज़ेह है कि अजीम तर हैदराबाद में 73,000 ऑटोस चलाए जा रहे हैं, जिनके मिन जुमला 5,000 ऑटोस रंगारेड्डी जिले के हुदूद में चलाए जाते हैं। इस तरह मजीद 3,500 ऑटोस के रजिस्ट्रेशन से GHMC हुदूद में ऑटोस की तादाद 77,000 हो जाएगी। शमशाबाद एयरपोर्ट सड़क की तोसी के सिलसिले में GHMC हुक्काम ने जुमेरात के दिन ज़ायद 20 गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। मकामी अफराद ने मीडिया से कहा कि बल्दिया ने क़ब्ल अज़ वक्त नोटिस दिए बगैर ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी है। मुतासिरीन की जानिब से मुज़ाहमत की कोशिश करने पर हालात कुछ देर के लिए कशीदा भी हो गए थे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अब मुसाफिरीन की सहूलत के लिए प्रीपेड ऑटो सिस्टम मुतारिफ किया जा रहा है, जिसके तहत 3 किलोमीटर तक दिन में 30 रुपये और रात में 40 रुपये किराया लिया जाएगा, जबकि 6 किलोमीटर तक 55 और 80, 9 किलोमीटर तक 80 और 120, 12 किलोमीटर तक 110 और 160 रुपये किराया होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बी सत्यनारायण ने 24 नवंबर को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो बुकिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। बांझपन के इलाज के माहिर मुंबई के नामवर डॉक्टर संजय पाटिल ने कहा है कि 8 एम्ब्रियो ट्रांसफर का मरहला ठीक ढंग से हो तो हमल ठहरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उन्होंने 4TV को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि एम्ब्रियो ट्रांसफर 99% तक कामयाब होता है, लेकिन हमल की शरह कम होती है। डॉक्टर पाटिल ने कहा कि हैदराबाद में हिंद जर्मन आलात से लैस असली लेबॉरेटरियां कायम हैं जो बेहतर नताइज पैदा कर रही हैं। आज मैं हैदराबाद में हूँ डॉक्टर निर्मला अग्रवाल के साथ, जिनके पास एक बहुत सक्सेसफुल IVF प्रोग्राम वो चलाते हैं हैदराबाद सिटी में। इनका जो लेबॉरेटरी है
یہ अत्याधुनिक लेबोरेटरी है जिसमें इंडो जर्मन वेंचर मॉर्फियस के द्वारा पूरी इक्विपमेंट का स्थापना हुई है और इसमें बहुत अच्छे सक्सेस मिल रहे हैं। आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ 8 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रखे हुए हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत ढंग से करनी होती है, क्योंकि अगर वो ऐसे हम लोगों ने देखा है कि आजकल टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो फॉर्मेशन करीब 99% टाइम्स होता है, लेकिन प्रेगनेंसी रेट बहुत कम मिलता है, जैसे 40 या 50%। उपल में खातून ने मजीद जहेज के लिए ससुराल की मुबैना हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। 27 साला मुतवफ़िया PR लावनिया के अफराद ख़ानदान ने मीडिया को बताया कि लावनिया के ससुराल वाले आए दिन मजीद रकम और जहेज का मुतालबा करते हुए हरासा किया करते थे, जिससे तंग आकर उनकी बेटी ने चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब छत से लटक कर खुदकुशी कर ली। उपल पुलिस एक केस दर्ज करके मुतवफ़िया के शौहर को हिरासत में लेते हुए पूछताछ कर रही है। नूरी नगर चंद्रायन गुट्टे का रहने वाला 17 साला शेख नईम 20 नवंबर की सुबह से लापता हो गया है। वो कुव्वत समात और कुव्वत बसारत से महरूम है और बगैर किसी को बताए घर से चला गया। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि चंद्रायन गुट्टा पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। 1 रुपए किलो का चावल गैर मयारी, खाने के काबिल नहीं, अकबर ओवैसी की तनकीद, रक्षा बंडा प्रोग्राम में शिरकत। इख्तिदार पर 1 साल का मुकम्मल कर लेना ही किरण कुमार रेड्डी की वाहिद कामयाबी, रक्षा बंडा नुमाइशी प्रोग्राम, तेलुगु देशम की तनकीद। मुस्लिम नौजवान पर हमलों में मुलव्विस गिरफ्तार करदा हिंदू वाहिनी के 6 कारकुन SIT की तहवील में। बदनवानियों के वाकयात पर वज़रा से ज्यादा जवाबदेह सरकारी ओहदेदार, कांग्रेस के सीनियर अरकान कौंसिल की मंतिक। रियासती इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह की हैसियत से निसार अहमद काकरू के इंतखाब पर BJP चिरागपा, कांग्रेस और तेलुगु देशम पर साजिश रचने का इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह।